Are you getting the voice? सुनने आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. So we have stopped at this. So please start reading. Okay, sir. These types of amendments are passed by simple majority. Now, please start from the beginning. We are starting a new session, so please start with the beginning. What type of amendment? From the heading. Okay, sir. What type of amendments Indian Constitution provides for? What These type are of? three types of amendments. Okay, what are those? What are Amendments which are not those? Amendments which are those which are not called amendments. Okay. yes. Yeah. Creation of new states, changes of names and boundaries of states. So amendments Article are 3 and 4. amendments those which are not called as amendments. ठीक है. पहला क्या है? What are the first type? Abolish. Creation of states or change of names. So there are three types of amendments. First type of amendment क्या है? Amendments which are not called amendments. Change कर रहे लेकिन उसको change बोलकर नहीं बोल रहे. ठीक है. Example क्या है उसका? Creation of new states और names of the boundaries. creation of new states or change of names and boundaries of states is given under article number 3 and 4. 3 and 4. समझ में आ रहा? 4. ठीक है. Yes, sir. उसके बाद में Abolition of legislative councils in states. in Article 169. in states under article number 169 of our constitution. So what is the legislative assembly? The legislative assembly is, देखिए हर स्टेट लेवल पे एक अपर हाउस रहता है, एक लोअर हाउस रहता है. अपर हाउस को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोअर हाउस को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. समझ रहे? क्लियर? सो व्हाट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल? What is legislative council? What is legislative council? What did क्या समझे अभी तक आप? What is legislative council? Hello, आ रही आवाज? Are you getting my voice? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Wait, if you have any problem because Sabha message voice is not clear. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. आ रही आवाज आओ? Hello. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. आ रही आवाज? Hello. हाँ सर, आ रही सर आवाज आपकी. So please. वही सारी क्लियर है. So अपना जो माइक चेक करिए प्लीज. The volume control check करो. हेलो. So what types of amendments Indian Constitution have? So what are three types of amendments? पहला type क्या है? Amendments which are not called amendments. Example article number 3 and 4. And second क्या है? Abolition of legislative councils in state. So what are legislative councils? Legislative council किसको बोलते हैं? Lower house of assembly. Upper house. स्टेट में 2 हाउसेस रहते. जैसा सेंट्रल लेवल पे कितने हाउसेस है? 2 हाउसेस है. वन इज द राज्यसभा, वन इज द लोकसभा. सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी 2 हाउसेस रहते, अपर हाउस, लोअर हाउस. अपर हाउस को क्या बोल रहे हैं आप? लेजिस्लेटिव काउंसिल. लोअर हाउस को क्या बोल रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली. समझ में आ रहा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
So what is legislative council? Upper house. Rajya Sabha, upper house. लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, क्या बोलते हैं आप? Upper house. Upper house. कौन से लेवल पे? State. State level. स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे गए तो कौन क्या है? अपर हाउस, राज्यसभा, Rajya Sabha. दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट। समझ में आ रहा? स्टेट लेवल पे अपर हाउस क्या बोल रहे हैं? लेजिस्लेटिव। Legislative Council. ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। This type of amendments are passed by the simple majority. सो द फर्स्ट टाइप है अमेंडमेंट करके भी जिसको अमेंडमेंट नहीं बोल रहे, वो कौन से मेजॉरिटी से पास होता? सिंपल Simple. मेजॉरिटी। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट पढ़िए। Amendments that are passed by the parliament by the majority of the houses and 2/3 of presence and voting. Majority of constitutional amendments are done by the process under Article 368 under 2. तो सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट क्या है? व्हाट इज द सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट? व्हाट इज सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट? जो देखिए अपने पास कितने हाउसेस है? 2 हाउसेस है, और इन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोट्स। प्लीज नोट इन योर नोट्स। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इन इंडिया amendment of the constitution can be done only by the parliament. In India, amendment of the constitution can be done only by the parliament. समझ में आ रहा क्या है? इंडिया में पार्लियामेंट, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसको है? Only Parliament. ओनली पार्लियामेंट को है। और इंडिया का पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं? इंडियन 3. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कौन कौन है इंडियन पार्लियामेंट में? 3, sir. व्हाट आर दोस? President of India, Lok Sabha and Rajya Sabha. प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस एंड राज्यसभा। ठीक है, ये आपका लॉ सेट में मैक्सिमम टाइम का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो पहला अमेंडमेंट क्या है? विच आर अमेंडमेंट रहे कि भी अमेंडमेंट नहीं बोल रहे। सेकंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट क्या है? विच आर पास बाय द पार्लियामेंट by the majority of the house and 2/3 present at voting. ठीक है, इसको ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 368। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय दिस? ये जो पढ़े आप अभी, क्या है ये जो पढ़े अभी आप, ये स्टेटमेंट पढ़ो प्लीज। रीड। Majority of constitutional amendment are done by the process under Article 368. 368 clause 2। लेकिन पहला स्टेटमेंट पढ़ो फिर से। Amendments that are passed by the parliament by the majority of the house and 2/3 of the presence and voting. मेजॉरिटी ऑफ द हाउस माने उसमें 2 स्टेटमेंट्स है। देखिए देयर आर 2 पार्ट्स इन दैट। मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, अगर एक अपने घर में एक हाउस माने फॉर एग्जांपल देयर आर 100 मेंबर्स। कितने मेंबर्स है? Yes, sir. 100 मेंबर्स। मेजॉरिटी माने क्या हो गई? 50%। 50-50. Yes, sir. 50% प्लस 1 तो कितने हो गए? 51. 51. This is the majority of the house. This is the majority. समझ में आ रहा? This Yes, is the sir.
मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। तो कितने होना है? पहला कंडीशन क्या है? 51 वोट्स मिनिमम होना है। अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो 51 मिनिमम होना है। उसका सेकंड हिस्सा क्या है, पढ़िए। 2/3 of 2/3 of the presence voting. 2/3 of the members present and voting. So for example 100 सीटा हैं तो मिनिमम कितने होना है अपने को? 51 सीट्स होना ही होना है, 51 वोट्स होना ही होना है। Yes, sir. yes ठीक है, ये पहला कंडीशन है। और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग माने पूरी स्ट्रेंथ कितनी है? 100. 100। फॉर एग्जाम्पल 100 तो Yes. पूरे 100 नहीं आते। डू वी एनी टाइम डू Yes. वी गेट 100? नो, No. वी No. डोंट गेट 100। तो क्या करना है आपको? फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 90 पीपल प्रेजेंट एंड 10 आर एब्सेंट। 90 पीपल प्रेजेंट, 10 आर एब्सेंट। सो प्रेजेंट कितने Okay. हैं? 90. 90 90 का Yes. 2/3 क्या हो जाता? 3 1 जा 3, 3 3 9. 3 3 जा 9। Yes. तो कितने वोट होना? 13 to 2 60 वोट्स। 60. समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर? तो क्या है ये? दिस इज द मेथड। फिर से पढ़ो एक बार, ये क्या है दिस पॉइंट? Amendments that are passed by the parliament by the majority of the house and 2/3 of the presence and voting. मेजॉरिटी ऑफ द हाउस माने कितने वोट्स होना है? 51. माने एक एग्जांपल दिया आपको मैं से, और 51 Okay. तो मिनिमम होना है। Yes, और sir. प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। कितने प्रेजेंट है और कितने वोट कर रहे हैं? 90 प्रेजेंट है और वोट कर रहे हो लोग। ठीक है, उसमें से Yes, sir. 90 का 2/3 कितना है? 60 तो ये प्रोसेस है। अगर कम से कम 60 लोग उधर है तो ही क्या होता है, ये मेथड एप्लीकेबल है। मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट रहना? 90 मिनिमम कितने रहना? मेजॉरिटी ऑफ द हाउस मिनिमम कितने रहना? मिनिमम कितने रहना? 51 मेजॉरिटी 51 मिनिमम रहना। majority 50 मिनिमम मेजॉरिटी उतने रहना प्रेजेंट, बैठे हुए उधर हाउस में। ठीक है, उसके बाद में भी फिर कितने बैठे हुए हैं उन लोगों का 2/3 कितना आ रहा? 60। तो अगर पूरे 60 मिलके अगर वोट डाले तो ही अमेंडमेंट पास होता। समझ में आ रहा? क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, प्लीज रीड द थर्ड पॉइंट, थर्ड मेथड। Amendments that after the approval by the parliament require ratification by half of the states. These are about distribution of powers in the seventh schedule, representation of states in parliament, and presidential elections, provision dealing with Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट माने क्या है बोले तो अमेंडमेंट दैट आर रिक्वायर्ड बाय द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या है? ये किसकी स्टोरी बताया अभी तक मैं? ये किसकी स्टोरी बताया? ये सिर्फ पार्लियामेंट की स्टोरी बताया मैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़े चीजें ऐसा है, अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो पार्लियामेंट भी अप्रूव करना। पार्लियामेंट अप्रूव करने की कहानी बता दिया हमें, पार्लियामेंट में अप्रूव करना, प्लस उसके बाद में क्या है? Ratification of half of the states. रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। अपने पास कितने स्टेट्स है? अपने पास कितने स्टेट्स है? 29. 8 है. 28 स्टेटा हैं, उसका हाफ 28/2 कितने स्टेट्स करना है? 14 स्टेट्स। कैसा है करना है? अपने पास अपने तेलंगाना में ऐसे कितने स्टेट्स
उसको रेटिफाई करना, रेटिफाई माने कंफर्म करना। कितने स्टेट करना है? 14. 14 स्टेट। कैसा? सिंपल मेजोरिटी से। फॉर एग्जांपल तेलंगाना है, तेलंगाना की असेंबली में कितने सीट्स है? 120। कितने सीट्स है तेलंगाना की असेंबली में? 120. 120। तो 2 1 जा 1 2 इसके हाफ, 50% प्लस 1 कितना हो गया? 60 प्लस 60. प्लस 1 कितने सीट्स है? 61। समझ में आ रहा? 61. ये क्या है? अगर क्या क्या चेंज करने के लिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में क्या है? 3 लिस्टा है। कौन सी लिस्टा है? कॉन्करेंट Union लिस्ट, list, state list, यूनियन लिस्ट, concurrent list. स्टेट लिस्ट, Union list or state list? यूनियन लिस्ट, Concurrent स्टेट list. लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये चीजों में अगर करना है Concurrent list. तो पार्लियामेंट का अप्रूवल होना प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का सिंपल मेजॉरिटी से Half of रेटिफिकेशन the होना। state. समझ में आ रहा? Yes, sir. ठीक है, क्लियर? सो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेथड, बाय हाउ मेनी मेथड्स वी डू द अमेंडमेंट? पहला क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वन? व्हाट इज द फर्स्ट वन? कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके भी Amend यू डू नॉट से नहीं कर अमेंडमेंट। रहे बोल के. एग्जांपल? Yes. Creation of new states and change of names and boundaries of state. और एक एग्जांपल, दो एग्जांपल हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 3 and 4। 3 and 4. एक और एक एग्जांपल क्या है? Abolition of legislative councils. आर्टिकल नंबर Article number 169. 169। उसके बाद में दिस ये क्या है? सिंपल मेजॉरिटी माने, सिंपल मेजॉरिटी माने 50% प्लस 1, 1. बस 50% प्लस 1। प्रेजेंट एंड वोटिंग, Yes, sir. प्रेजेंट एंड Voting. वोटिंग माने प्रेजेंट, सिंपल मेजॉरिटी माने 50% 1, प्रेजेंट एंड वोटिंग माने 100 मेंबर हैं, देयर आर 100 मेंबर्स, उसमें से 90 प्रेजेंट है Yes, sir. और वोट कर रहे, तो इसका आधा 50% कितना हो जाता? 45 प्लस 1। तो अगर 46 आ गए तो ये क्या हो गया? सिंपल मेजॉरिटी हो गई। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट क्या है? व्हाट इज सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट? व्हाट इज सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट? Amendments that are passed by the parliament by the majority of the house and 2/3 of presence and voting. 2/3 present and voting. So amendment by the pass of the parliament by the majority Yes, of the house माने 50% प्लस 1। समझ गए? ये मैं बता दिया था इससे पहले। Yes, sir. एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। पहले तो 51 मेंबर्स होना ही होना है, उसके बाद में भी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग प्रेजेंट है, उसका 2/3 P इंटू 2/3। इसका जो आंसर आता ना, उतने लोग मिनिमम प्रेजेंट रहना, तो ही क्या होता? अमेंडमेंट पास होता। ठीक है, Yes, sir. ओके। ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? Article number 368. आर्टिकल नंबर 368 क्लॉज 2। आर्टिकल नंबर 368 क्लॉज 2। क्लियर? 2. ये सेकंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट है। थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट क्या है? व्हाट इज थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट? Yes, sir. पार्लियामेंट के पास भी अप्रूवल होना और हाफ स्टेट के पास रेटिफाई होना। कौन से? हाफ ऑफ द स्टेट्स को भी रेक्टिफाई करना हो लोग। रेटिफाई करना माने कंफर्म करना। कौन से चीजों के लिए? अगर 7th शेड्यूल में चेंज करना है, इलेक्शंस के मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स माने एक स्टेट कितना रिप्रेजेंट करा पार्लियामेंट में, उसमें अगर चेंजेस लाना है तो क्या होना? ये दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ अमेंडमेंट बोलते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, बोथ हाउस, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अगर कुछ चेंजेस लाना है
और Elec- और elections. सुप्रीम कोर्ट के कुछ मेथड चेंज करना है, तो क्या होना ये? कौन सा मेथड है? पार्लियामेंट अप्रूव करना, उसके बाद में स्टेट्स भी उसको अप्रूव करना। कितने स्टेट्स? आधे। States को approve करना. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ. So there Yes, are three types of amendments. One is, what are those? बहुत ही स्लो जा रहा हूँ मैं because ये बहुत confusing है. There are three types of amendments. Amendments which are not called as amendments. माने वो जो simple majority से पास हो जाती. Example article number 3 and article number 3 and 4 and article number 169. ये पहला type of amendment है which are not called as amendments. Second क्या है? Parliament approve करना. Majority of the house plus 2/3 present and voting. समझ में आ गया? ये कौन सा आर्टिकल में है? 368 क्लॉज 2. थर्ड वन क्या है? पार्लियामेंट भी अप्रूव करना प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स भी अप्रूव करना उसको. इसको बोलते हैं अमेंडमेंट मेथड 3. कौन से चीजों के लिए मेथड काम आता? 7 शेड्यूल में चेंज करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट में चेंज करने के लिए, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और सुप्रीम कोर्ट का कुछ अगर मेथड चेंज कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस अगर कुछ चेंज ला रहे, तो ये मेथड काम आता. समझ में आ रहा? प्लीज रीड नेक्स्ट. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस. फैजा, In Kihato, शीमा, सबा, रुखसाना, गौसिया, सोनिया, शिरीन. क्लियर है? अजीम, yes, इज इट sir. क्लियर? Yes, sir. ठीक है. आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम समझाने के बाद भी नहीं होता. सो ये इसके बाद क्या है? इंपॉर्टेंट केसेस है related to the amendment. So make sure you write down the name of the case as well as the year. हमेशा आपको क्वेश्चन आता. ठीक है. And I will be sending a question paper to you. क्या बोलते हैं अपना क्वालिटी का क्वेश्चन पेपर भेजा रहा हूँ आप लोगों को ग्रुप में. प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट. ठीक है. 100 क्वेश्चन है, जस्ट अटेम्प्ट करिए वो. बिकॉज मैं जब अटेम्प्ट करा आई गॉट समथिंग अराउंड 67 कुछ आए करेक्ट मार्क्स में. आप सिर्फ बेसिकली अटेम्प्ट करो बस. ठीक है. आई नो यू डोंट हैव एनी प्रिपरेशन. आई वांट यू टू जस्ट अटेम्प्ट इट. एक ओएमआर ले लो. एक ओएमआर ले लेके जस्ट बबल आउट करते जाओ जो बाय योर इंट्यूशन. ठीक है. जस्ट प्रैक्टिस करो. देन आई विल सेंड यू द की. क्लियर? नेक्स्ट प्लीज रीड. इंपॉर्टेंट केसेस. Okay, sir. Important cases. Next. Sir, what is that word in Quixote. Quixote? Holoven. Holohan. Quixote, Holohan versus Quixote. Zaichilu. Okay. Quixote, Holohan versus Zaichilu. Zaichulu was 1992, Part 7 of Anti-Defection Law that outsided the jurisdiction of courts was struck down as a ratification process was not done. So please write on there. Quixote versus Zaichilu is known as anti-defection law case. Please write on there in your. हर केस का एक टैग है, एक नाम है. ठीक है. Quixote, Holohan case. माने it's also known as anti-defection law case. Anti-defection law case. ठीक है. अगर आपको आंसर हमें नहीं मालूम है तो एक ऑप्शन भी मालूम है तो पूरा गेस करके आप बना सकते हो. ठीक है. तो Quixote, Holohan में क्या दिया हुआ है? एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है? एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ इज इन विच शेड्यूल? 10th sir, maybe 9 or 10 because Is in- 11 or is in 10th schedule. Is in 10th schedule. एंटी डिफेक्शन लॉ इज इन Yes, 10th schedule. sir, because आपको 11th or शेड्यूल्स याद है पूरे? yes sir. डू यू रिमेंबर ऑल द शेड्यूल्स? Sir, some sir,
For नॉट example, सम, first पार्ट याद है? अगर आपको, अगर इफ यू आर नो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो सबसे पहले प्रियम्बल याद रहना, सबसे पहले, उसके बाद Yes, sir. पार्ट याद रहना, फिर उसके बाद में शेड्यूल्स याद रहना. देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज. yes, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है वैसा भी. yes, sir. तो अपने सेशन में 3 मिनट बाकी है. लेट अस रिवाइज द शेड्यूल्स. 12 शेड्यूल है अपने पास. कौन से शेड्यूल हैं? कितने शेड्यूल्स है अपने पास? 12. पहले 12. ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली कितने थे? 8, ओरिजिनली 8 थे. उसको अमेंड करते गए, कितने बन गए? कितने शेड्यूल बन गए? 12, 12. 12. 4 ऐड करे. 75 सालों में कितने शेड्यूल्स ऐड करे? 12. 4, 70 सालों में. ठीक है, तो पहला शेड्यूल क्या है? आई वांट एवरीवन टू रीड प्लीज. फर्स्ट शेड्यूल क्या है? state, States. स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज. Union territories. सेकंड शेड्यूल क्या है? provision as to the president and the governors of state. और स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. Third, oath थर्ड of शेड्यूल form of oath and affirmation. Forms of oath and एफर्मेशन, affirmation. माने खसम. जो ना खसम खाते हो देखते, Yes, sir. वो क्या है? Oath थर्ड लेते शेड्यूल में हैं. है. जो भी खत्म खाए ना, पूरे थर्ड शेड्यूल में लिखे गए. फोर्थ शेड्यूल क्या है? Allocation of seat in the council of state. काउंसिल ऑफ स्टेट माने Seats को जो Council of State distribute किसको बोलते करते हैं? sir. काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? राज्यसभा, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? council of state. काउंसिल ऑफ स्टेट. और एक नाम क्या है राज्यसभा Yes. का? upper house, अपर हाउस. Upper house. समझे? कौन से शेड्यूल में है? Yes, sir. राज्यसभा में सीट किसको कितने देना, वो क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट Yes, में sir. है. कौन से शेड्यूल में है ये? फोर्थ शेड्यूल. खसम कौन fourth से? schedule, खसमा कौन से शेड्यूल में है? third, Third. फोर्थ शेड्यूल. फिफ्थ शेड्यूल क्या है? provision Provisions as as to the administration and control administration of and control of scheduled areas. areas and Now states scheduled के जो tribes. एरिया है वो लोग के लिए सर नागालैंड, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल. हाँ, सबर 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 मैम, जल्दबाजी नहीं. शेड्यूल एरिया क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है, तो याद रखो. Yes, sir. सिक्स शेड्यूल क्या? फिफ्थ सिक्स शेड्यूल क्या है? Provision as to the administration of tribal areas in the state of Assam. असम, Sir, चल गया. असम, Assam, Meghalaya, Assam, Meghalaya, Tripura and Tripura, Madhya